نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم. اور مکرم سامعین، پیارے دینی بھائیوں، بزرگوں، میری پیاری ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو کچھ کہنے سننے کا موقع دیا. یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، کرم ہے، احسان ہے. اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے ہدایت کا، خیر خائی کا، بھلائی کا، عافیت کا، سکون کا، برکت کا فیصلہ فرمائے. موت کا تذکرہ، جنت اور جہنم کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہیں. میں نے جو ابھی آیت کریمہ تلاوت کی، قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ رب العزت نے صاف طور سے ارشاد فرمایا، علی الاعلان کہا، اے لوگو جو بھی اس دنیا میں آئے ہو، جو نفس بھی اس دنیا میں پیدا ہوا، وجود میں آیا، ہر نفس کو، ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو، ہر مخلوق کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی جس چیز کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ان تمام چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مرنا ہے یعنی پیدا ہی ہوتا ہے مرنے کے لیے. جب کوئی چیز پیدا ہو گئی، کسی چیز کا وجود ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے اب وہ ختم بھی ہوگی. وہ چیز ہمیشہ نہیں رہے گی، ختم ہونا ہے، فنا ہونا ہے. اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. اس کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا، فنا ہونا پڑے گا. کیا مطلب؟ اس آیت میں بہت سارے اشارات ہیں، لمبی تفسیریں ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں مثالوں سے، واقعات سے، عبرتوں سے کہ آخر موت ہے کیا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو دنیا نے اب تک سمجھا نہیں. ریسرچ ہوئی اس پر، باقاعدہ بڑے بڑے سائنس والوں نے تلاش کیا، ریسرچ کیا. موت ہے کیا چیز، کسی کو اب تک سمجھ میں نہیں آیا. دنیا کی ہر چیز میں اختلاف ہے کہ اس میں یہ ہے. ایک سائنسداں کہتا ہے، ایک جانکار کہتا ہے، ایک علم والا کہتا ہے کہ بھائی اس میں یہ بات ہے، دوسرا کہتا ہے یہ بات بھی ہے. اختلاف ہو جاتا ہے. تیسرا کہتا ہے میں نہیں مانوں گا، میں اپنی تحقیق دے رہا ہوں، اس میں یہ نہیں بلکہ یہ تیسری بات ہے. چوتھا کہتا ہے میری رائے اس بارے میں یہ ہے. لیکن آج تک جب سے یہ دنیا بنی کسی کا موت میں کوئی اختلاف نہیں ہوا. کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ موت میں میرا اختلاف ہے، میری رائے یہ ہے کہ موت میں یہ ہے اور وہ ہے، اور شک ہے اور ڈاؤٹ ہے. کوئی ذرہ برابر بھی کوئی بھی دنیا میں ایسا اب تک پیدا نہیں ہوا جنہوں نے موت میں اختلاف کیا ہو یا موت میں ذرہ برابر شبہ کیا ہو. اور نہ قیامت تک کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جو موت میں اختلاف کر سکتا ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو بھی پیدا کیا، دنیا میں جن چیزوں کا وجود ہوا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور یہ موت کیوں ہے اور یہ کیا ہے؟ ہم اور آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ جو انسان مر گیا اس کا کام ختم ہو گیا، بلکہ جو مر گیا اس کا کام اب شروع ہو گیا. کام ختم نہیں ہوا، جو مر گیا اس کا کام شروع ہو گیا. کام تو ہمیں دنیا میں کرنا ہے. اور موت، الموت جسر، موت ایک پل کی طرح ہے، ایک پل ہے. یوصل الحبیب الی الحبیب، جو اپنے حبیب کو اپنے محبوب سے ملا دیتا ہے، ایک عاشق کو اپنے معشوق سے ملا دیتی ہے. یہ ہے موت کی حقیقت. موت
किसी की जिंदगी को हमारी नजरों में खत्म करती है, लेकिन मौत दर हकीकत वो है जो एक हबीब को दूसरे हबीब से जाकर मिलाती है। क्या मतलब? हमें पुल पार करना है, हमें दरिया को पार करना है, पानी है, उस पार जाना है। मेरा महबूब, मेरा दोस्त उस पार में खड़ा है, कोई जानने वाला रिश्तेदार खड़ा है, हम इस पार में खड़े हैं, हम उससे मिलना चाह रहे हैं, तो हमें पुल का सहारा लेना पड़ता है, पुल के जरिए गुजरना पड़ता है। हम पानी में नहीं कूदते हैं, उस पुल पर चढ़ करके, उस पर चल करके हम अपने रिश्तेदार से, अपने महबूब से और इसी तरीके से अपने जान पहचान वालों से मिलते हैं। बिल्कुल यही हकीकत है मेरे प्यारे दिली भाइयों कि मौत एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी शय है कि जो एक ऐसा पुल है कि जो सिर्फ एक महबूब को दूसरे महबूब से मिला देता है। महबूब कौन है? हम अल्लाह के हबीब प्यारे आका व मौला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में पैदा किए गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को सबसे ज्यादा महबूब अपने नबी की जात थी, मोहम्मद अरबी की जात थी, और हम उस मोहम्मद अरबी यानी अल्लाह के महबूब के महबूब हैं, तो हम भी अल्लाह के महबूब हैं, हम अल्लाह के प्यारे हैं। अल्लाह ताला हमसे 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत और प्यार करते हैं, और अल्लाह अपने पास हमें बुलाने के लिए इस मौत को पुल बना करके हमें और आपको अपने पास बुला लेते हैं। तो मौत तो दर हकीकत अल्लाह से मिलने का जरिया है, अल्लाह से मिलने का सहारा है। एक मोमिन की जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है, और मोमिन जब दुनिया में आता है मरते दम तक, बुलूगत से बात से लेकर के मौत तक वो अपनी मौत की, अपने आखिरत की, अल्लाह से मुलाकात की तैयारी कर रहा होता है। हम और आप जो दुनिया में जी रहे हैं, हमारे जीने का मकसद खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया कि तुम्हें सिर्फ ये नहीं कि दुनिया को खेल कूद कर गुजार देना है, बल्कि तुम्हें यहाँ आकर के मुझसे मिलना पड़ेगा। हिसाब किताब का सिलसिला शुरू होगा। दुनिया में तुमने हमसे जिस कदर मोहब्बत की होगी, जिस तरह से मोहब्बत की होगी, जितना मेरा ख्याल रखा होगा, आजा मौत के पुल पर चढ़कर आजा, मैं उससे ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और मैं उससे ज्यादा तुम्हें आराम दूंगा। तुम अगर दुनिया में एक कदम मेरे तरफ चला होगा, मैं आखिरत में तुम्हारी तरफ 10 कदम चलकर जाऊंगा। तुमने अगर मेरी तरफ एक हाथ बढ़ाया होगा, मैं आखिरत में तुम्हारी तरफ 10 हाथ बढ़ाऊंगा। अगर एक बालिश्त चला होगा, मैं तुम्हारे लिए एक हाथ चलूंगा। यानी तुमने अगर मेरा ख्याल रखा, कल क़यामत के दिन मौत के बाद आखिरत की जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा और आपका ख्याल रखेगा। ये है मौत की हकीकत। और मौत से किस किस को रुस्तगारी है, मौत से किस किस को रुस्तगारी है, आज उसकी कल हमारी बारी है। कोई नहीं बच सका और न कोई बच सकता है, चाहे वो कितना ही बड़ा बादशाह हो। जब अल्लाह ने अपने नबियों को अपने पास बुलाया, अल्लाह के सबसे करीब बंदों में उनके नबी होते हैं, रसूल होते हैं, उनके भेजे हुए बंदे होते हैं। जब अल्लाह ने उनको नहीं छोड़ा, तो फिर हम और आप और इस दुनिया की हकीकत पर क्या हो सकती है। बड़े बड़े बादशाह इस दुनिया से गुजरे, लेकिन मौत ने किसी को नहीं छोड़ा। जिनके पास दुनिया की सारी बादशाहत थी, सारी हुकूमत थी, किसी भी चीज की उनके पास कमी नहीं थी, लेकिन एक झटके में, एक लम्हे में, एक आन में उनको तबाह बर्बाद कर दिया, निस्तनाबूद कर दिया। और सिर्फ वो बादशाह नहीं जो जालिम और जाबिर हो, बल्कि नेक लोगों को भी, नेक बादशाहों को भी, अपने उन नबियों को भी जो नबी भी थे, हाकिम भी थे, पूरी दुनिया के बादशाह थे, पूरी दुनिया के हुक्मरान थे, लेकिन अल्लाह ने उनको भी अपने पास बुलाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप तज़किरा सुनते हैं, कुरान करीम ने बेशुमार मकामात पर
इन नबियों का हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बड़े बड़े अंबिया का तज़किरा किया, लेकिन आज कोई भी नबी हमारे सामने नहीं है। इसका मतलब यह है कि हर नबी तशरीफ ले चुके हैं, हर नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौत का मजा चखाया है और अपने पास बुलाया है। लेकिन नबी और अल्लाह के जो महबूब होते हैं, अल्लाह के जो प्यारे बंदे होते हैं, अल्लाह के जो मुकर्रब बंदे होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको सिर्फ एक हल्की सी मजा चखाते हैं और वो मजा भी मजा होता है और अपने पास उनको बुला लेते हैं, अल्लाह से उनकी मुलाकात होती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है, आप किताबों में पढ़ेंगे, पूरी दुनिया के बादशाह थे और सिर्फ इंसानों के नहीं बल्कि तमाम कायनात की जिन्नातों के भी बादशाह थे। इस तरीके से आपकी हुकूमत हवा पर भी थी, पानी पर भी आपकी हुकूमत थी, यानी हर चीज के आप बादशाह बनाए गए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको भी अपने पास बुलाया और मौत का मजा चखाया। इस तरीके से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की तामीर कर रहे हैं। जब वक्त आया तो आपने देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर अभी पूरी नहीं हुई है। जिन्नातों को काम पर आप लगाए हुए थे, जिन्नात मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस की तामीर कर रहे हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि अब मेरी मौत हो जाएगी, तो आपने एक शीशे का छोटा सा शीशानुमा घर, शीशे का घर बनाया साफ और शफाफ शीशे से, और आप इबादत करते थे खड़े होकर, उसी तर्ज पर उस शीशे के घर में खड़े हो गए, लकड़ी और आसा पर टेक लगाए हुए। आप खड़े हैं, जिन्नात काम पर लगे हुए हैं, जिन्नात ये समझ रहे हैं कि काम हो रहा है, हजरत सुलेमान जिंदा है, खड़े हैं। हालांकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हो चुकी है, आपकी रूह परवास कर चुकी है, लेकिन आप चूंकि इबादत की हयात पर, इबादत की हालत में खड़े हैं, जिन्नात ये समझते हुए कि आप जिंदा है, काम पर लगे हुए हैं। रिवायतों में लिखा है कि मुकम्मल 1 साल तक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी लकड़ी पर टेक लगाए हुए खड़े हैं और जिन्नात ने बैतुल मुक़द्दस की तामीर मुकम्मल की। जब तामीर मुकम्मल हुई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस लकड़ी में दीमक का कीड़ा लगा दिया और दीमक के चाटने से वो लकड़ी टूट गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नीचे गिरे। तब जिन्नातों को मालूम हुआ कि हजरत सुलेमान की रूह परवास कर चुकी। अल्लाह ने यह हिकमत दी, लेकिन मौत से किसी को छुटकारा नहीं दिया। और इस वाक़े से यह भी पता चला कि हजरत सुलेमान जैसा बादशाह, हजरत सुलेमान जैसा नबी, जो पूरी दुनिया पर जिनकी हुकूमत थी, पानी पर हुकूमत थी, हवाओं पर हुकूमत थी, परिंदों पर हुकूमत थी, जिन्नातों पर हुकूमत थी, इस तरह का हाकिम अल्लाह ने जब उनका वक्त आया उनको भी जर्रा बराबर मोहलत नहीं दी। यहां तक कि आपको बहाना बनाने के लिए इस तरह की बातें आपके दिमाग में डाली कि भाई इस तरह कर लो, जिन्नात आपकी मस्जिद की तामीर मुकम्मल कर देंगे, लेकिन मौत ने वक्त पर आकर उसको अपना निशाना बनाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मलकुल मौत आए आपके पास, इंसानी शक्ल में अल्लाह ने भेजा था, इंसानी शक्ल में आए। हज़रत मूसा जलाली नबी थे। कहा भाई किस काम से आया हो? कहा रूह कब्ज़ करने आया हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दिया एक थप्पड़ खींच के, मलकुल मौत को खींच के दिया आपके पास। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो थप्पड़ दी, नबी को 100 इंसान की ताकत होती, वो या 100 थप्पड़, मलकुल मौत की आंख बाहर आ गई। सही हदीस में लिखा है, बुखारी शरीफ में भी हदीस है, मलकुल मौत की आंख बाहर आ गई। वो गए अल्लाह के पास, ऐ अल्लाह, आपने कैसे जलाली शख्स के पास भेज दिया जिसने मुझे मार कर आंखें मेरी बाहर निकाल दी। कहा दोबारा जाओ और उनको कहो कि एक बैल के पुष्ट पर, एक बैल के पीठ पर तुम हाथ रखो, उस आपके हाथ में जितने बाल आएंगे तुम्हारी जिंदगी उतनी होगी। कहा कि उसके बाद फिर मौत है, तुम्हें फिर मरना ही होगा, अल्लाह के पास जाना होगा। कैसे अच्छा है कि अभी रूह कब्ज़ कर लो, अभी रूह कब्ज़ कर लो। तो मौत ने किसी को नहीं छोड़ा। एक बादशाह के बारे में लिखा है, बड़ा गुरूर
घमंड में चूर रहता था, बड़ा मुतकब्बिर बादशाह, बड़ी लंबी चौड़ी हुकूमत थी। जब मलकुल मौत उनके पास आया इंसानी शक्ल में, मौत का फरिश्ता आया इंसानी शक्ल में, फकीर की शक्ल में, वो बादशाह कहीं चल रहा है, वो आकर के इस घोड़े की नकील को, रस्सी को पकड़ा जिस पर वो बैठा हुआ था, और बादशाह को कहा कि मेरी एक बात सुन लीजिए, एक दरखास्त सुन लीजिए। बादशाह बड़ा जालिम था, मुतकब्बिर था, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, झटक कर कहा कि इसको दूर करो यहां से। कहा हुजूर मेरी एक बात सुन लीजिए। कहा कि ठीक है, तुम आ जाना किसी टाइम में। कहा हुजूर मैं इसी वक्त एक बात आपके पास आपसे कहना चाह रहा हूं। कहा बोलो क्या बात है। कहा मैं इस तरह नहीं कहूंगा, मेरी जो बात है वो राज की बात है, बहुत जरूरी मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, इसलिए मैं सोचता हूं कि मैं आपके कान में इशारे से वो बात कहूं, इसलिए कि बहुत राज की बात है, गुप्त बात है, आप कान जरा मेरे करीब कीजिए, मैं एक बड़ी अहम बात, राज की बात कहना चाहता हूं। बादशाह ने कहा कि ठीक है सुन लेते हैं। चुनांचे उसने कान उसके करीब किया। उस मलकुल मौत ने जो इंसान की शक्ल में, फकीर की शक्ल में आया था, कहा हुजूर बादशाह सलामत, ओ जालिम ओ जाबिर, मैं मलकुल मौत हूं। क्या कहा? मैं मलकुल मौत हूं, तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम्हारा काम तमाम होने वाला है। अब उस बादशाह के हाथ कांपने लगे, घोड़े से गिरा, बदन हाथ थर्रा रहे हैं। कहा कि ओ मलकुल मौत भाई, मुझे इतनी तो मोहलत दे दो, इतना वक्त दे दो कि मैं कम से कम घर जाऊं, घर वाले को अलविदा कह दूं, मैं सफर में हूं। कहा कि मौत का जब वक्त आ जाता है, मौत मुतअय्यन वक्त पर आती है, और जब किसी की मौत का वक्त आ जाए तो फिर मौत मोहलत नहीं देती है, एक लम्हा भी मोहलत नहीं है, फौरन उसकी रूह को कब्ज कर लिया। ऐनमा युदरिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम जहां कहीं भी हो, अगर तुम लोहे के महल में भी बंद हो, मौत अपने वक्त पर आकर के तुमको पकड़ लेगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और प्यारे दीनी भाइयों और प्यारी माँ और बहनों, हमें और आपको अपनी मौत हर वक्त याद रखना चाहिए। न जाने अल्लाह किस हाल में पकड़ ले, न जाने अल्लाह कहाँ हमारे रूह को कब्ज कर ले। अल्लाह ने ये किसी को नहीं बतलाया, ये गैब की बातों में छुपा करके रखा है। अल्लाह ने अपने इल्म में रखा है कि मैं मौत किसी को नहीं बताऊंगा कि किस जमीन में तुम मरोगे, कहां मरोगे, किस तरह तुम्हारी मौत आएगी, ये अल्लाह ने किसी को नहीं बतलाया, किसी को जानकारी नहीं दी, वरना वो शख्स वहां पहुंचता ही नहीं। ये तो गुप्त में राज की बात अल्लाह ने बना करके रखा है। तो बहरहाल मौत सबकी आनी है। अक्लमंद वो शख्स है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले और अल्लाह से मुलाकात के लिए जिन असबाब की जरूरत है वो असबाब अभी ही इख्तियार कर ले। बस एक बुजुर्ग का वाक़या बतलाकर बात खत्म करता हूँ। हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना होगा। हारून रशीद खलीफा बादशाह के ज़माने में आप थे और आप बड़े बुजुर्ग अल्लाह के वली थे, अल्लाह के दोस्त थे, लेकिन बच्चों की तरह कभी कुछ काम करते थे और उसमें भी इबरत और सबक होता था। बादशाह हारून रशीद कभी कभी मजाक कर लिया करते थे। एक मर्तबा हारून रशीद ने उनको एक लकड़ी दी और कहा कि ए बहलूल, तुम्हें कोई भी शख्स जो तुमसे ज्यादा बेवकूफ तुम्हें दिखाई दे, तुम जाकर के उसको ये लकड़ी दे देना। इब्रत आमूर वाकया। कहा तुमको अगर अपने से ज्यादा बेवकूफ कोई दिखाई दे तो उसको ले जाकर के ये दे देना। कहा ठीक है। कुछ दिन के बाद घूमते फिरते बहलूल को खबर मिली कि बादशाह हारून रशीद बीमार है। अब दरबारियों से जाकर के कहा कि भाई बादशाह की हमें एक बार जियारत करने दो, मैंने सुना है कि बादशाह की तबीयत खराब है, बीमार है, हारून रशीद से मैं बहुत करीब रहा हूं। कहा कि इजाजत नहीं है, लेकिन कहा एक बार बादशाह सलामत के पास जाकर कहो कि मैं बहलूल हूं, अंदर आने की इजाजत मांग रहा हूं। दरबारियों ने कहा तो इजाजत मिल गई। आप गए और हारून रशीद को पूछा बादशाह सलामत कहाँ की तैयारी, कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं एक सफर पे जा रहा हूं। कहाँ का सफर है? कहा मुझे बहुत दूर का सफर दरपेश है, बहुत लंबे
बड़े सफर पर जा रहा हूं। कहा आप छोटे छोटे सफर पर जाते हैं, बड़ी बड़ी तैयारियां करते हैं, तो आप जब लंबे सफर पे जा रहे हैं तो आपने तैयारी क्या की? कितने घोड़े वहां भेजे, कितने गुलामों को वहां भेजा, क्या साजो सामान भेजा? जब आप छोटे मोटे सफर पर जाते हैं, लश्कर को भेज देते हैं, गुलामों को भेज देते हैं, बहुत सारी तैयारियां आपकी होती हैं, और आप बोल रहे हैं कि लंबे सफर पे जा रहा हूं, तो क्या तैयारी है? कि भाई बहुत लंबा सफर दरपेश है, तुम नहीं समझ सकते हो, यह ऐसा सफर है जहां से कोई आज तक वापस ही नहीं आया। मैं भी जाऊंगा तो मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं आने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं। बहलूल सर पकड़कर बैठ गया और कहा कि बादशाह सलामत, आप अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे हैं इतने लंबे सफर पर। अच्छा बताइए कि आपने वहां के लिए क्या भेजा? जब और भी लंबा सफर है तो आपने और वहां के लिए क्या भेजा? कहा भाई मैंने अफसोस तो इसी बात का है कि मैंने वहां कुछ नहीं भेजा। का क्यों नहीं भेजा? आपको भेजना चाहिए था, आपको सारी तैयारियां करनी थी। कहा अच्छा बताइए कि आपका कौन सा सफर है? कहा भाई मौत का सफर है, मलकुल मौत। अब मैं इस बीमारी में हूं कि अब मुझे शिफा नहीं मिलेगी, मुझे लग रहा है कि मेरी मौत आ जाएगी और मैं कब्र में चला जाऊंगा। कहा कि मैं तो यही समझाना चाह रहा हूं कि आप जब मौत के मुंह में जा रहे हैं, कब्र में जा रहे हैं, जहां से आपको लौटना नहीं है, तो आपने वहां के लिए क्या तैयारी की? आपने वहां क्या भेजा? कहा कि अफसोस तो इसी बात का है, मैंने दुनिया के लिए सब कुछ किया, दुनिया के लिए सारी तैयारियां की, दुनिया में रहने के लिए मैंने आसाइश के, आराम के, न जाने कौन कौन से साजो सामान तैयार किए, लेकिन मुझे जहां हमेशा रहना है वहां के लिए हमने कोई खास तैयारी नहीं की। कहा फिर इस लकड़ी के सबसे ज्यादा हकदार आप ही हैं, लीजिए ये लकड़ी आप ही रख लीजिए, मुझे आपसे ज्यादा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नजर नहीं आया। सबसे ज्यादा बेवकूफ तो आप हैं, सबसे बड़े बेवकूफ तो आप हैं कि आप इतने लंबे सफर पर जा रहे हैं और आपने कोई तैयारी नहीं की। आगे जो सामान, जो चीजें और जो अमाल काम आने वाले थे, उन अमाल को आपने नहीं किया। हमें और आपको अपनी जिंदगी में गौर करना चाहिए कि हमने और आपने कितनी तैयारियां की है। आज हम सब की भी मौत आनी है, हम सब के भी वो अहवाल हम सब के सामने आने वाले हैं। अल्लाह पूछेगा, सवाल व जवाब होगा, हम क्या जवाब देंगे? हमें और आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको भी मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।